Hello students, I am Monica Sol from MB International School, Nayagaon. Today we will be doing the chapter from your book First Flight, the 5th chapter, the 100 Dresses, Part 1. Okay. Now in this chapter, 100 Dresses, Part 1, we will be studying about the girl who had come from a very poor family. Let's see what the story tells you. How do we judge the people around us by the money, wealth and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? हम किसी भी इंसान को किस तरह जज करते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है या उसकी पर्सनैलिटी पे या फिर उसमें क्या क्वालिटी है? That they are asking the question over here. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? Now see, this is a girl who had come from Polish, the girl, she was a Polish girl and her name was Wanda Petronsky. She had come to America and how her classmate saw her, how they treated her, that we'll be reading in this chapter. Read the information in the box. Now here they have given a short information about this. Yes, the Polish American community in the United States. How these people had come to American states, United States, like the Polish people, the people from Poles. See, the first Polish immigrants arrived in America in 1608. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. 1 million Poles had come to United States. The Polish state did not exist at the time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. One of the most notable Polish American communities is in the Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish and Italians and the Jews. According to United States 2000 census, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as a language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English, or 0.25% of the US population. Now here they are going, in this story they have shown how the Polish people were discriminated according to their the way of speaking, the way they dressed, according to that. The people of America, they thought that they were not satisfied with the looks and with the behavior of these people and they were discriminated by them. They were just avoiding that. They used to make fun of these people. So this is only there in the story. We will talk about the girl who had come who was a Polish girl. Yes, here the story starts. Today, Monday. Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Now Monday, the day when the school starts, Wanda Petronsky, I told you she was for the Polish girl and she was absent that day, but no one noticed her absence because these people they didn't want her to come actually to school, so her absence was not noticed by anyone. Now they always used to make fun of her. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room was most scuffling of feet, most roars of laughter than anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Now this girl was made to sit at the corner of the class. वहाँ पर बैठाते थे उसको जहाँ पर वो बॉयज़ थे जो हमेशा मार्क्स कम लाते थे और वो कॉर्नर ऐसा था मतलब डर्टी, मतलब वो तो हमेशा गंदगी फैली रहती थी, कोई उसको देखता ही नहीं था. उस जगह पे उन्होंने इस गर्ल को बैठा रखा था बिकॉज शी वॉज अ पोलिश गर्ल एंड दीज पीपल वर डिस्क्रिमिनेटिंग हर. Now Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything
at all, and nobody had ever heard her laugh and out loud. Sometimes she was twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. Now Wanda, अब यहाँ पर तुम उनको क्या बोला है कि वो बच्चों को बैठाते थे जो नॉटी थे, जो हमेशा ज़ोर से बातें करते थे या हंसते थे, इसलिए उनको अवॉइड करने के लिए वहाँ बैठाया जाता था. बट वांडा तो ऐसी गर्ल नहीं थी, वो बहुत क्वाइट शाय नेचर की थी और ज़्यादातर ना बोलती थी ना वो स्माइल करती थी, बट कभी कभी उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दी. बट she was also made to sit in that corner. Now why that girl was made to sit in the corner? Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Paderewski once she sat in the corner of the room. अब उसको क्यों बैठाया जाता था? क्योंकि वो ऐसी जगह से आती थी, वहाँ के बॉगिन हाइट्स जो जगह है वहाँ पर ऑल द पीपल ऑफ पुअर क्लास पीपल लिव्ड ओवर देयर, और वहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी, कीचड़ थे, उसके पैर हमेशा कीचड़ में सने रहते थे, इसीलिए सारे लोग उसको अवॉइड करते थे और उसको कॉर्नर पे उन गंदे बच्चों के साथ बैठाया जाता था. Now, the time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. अब जैसे आपकी अपन की सबकी आदत है, जब स्कूल स्टार्ट नहीं होता तो ग्रुप में हमेशा लोग बच्चे खड़े रहते हैं, तो वो ग्रुप में खड़े होके दूसरा कोई भी आता है उसका मजाक उड़ाना, उसके लिए कुछ भी कमेंट पास करना, ये उन लोगों की आदत थी. वो अब आज वो लोग वेट कर रहे थे कि वांडा आए और हम उसका मजाक उड़ाएं, उसका कुछ उसको कमेंट करें. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. अब ट्यूसडे को भी वो नहीं आई और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया. बट on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. नाउ यहाँ क्या हुआ, वेडनेसडे को वापस जब वो नहीं आई तो कोई और किसी ने नोटिस नहीं करा, बट 2 गर्ल्स थी जो फ्रेंड्स थी, एक तो पैगी थी, मेडी थी. पैगी फेमस गर्ल थी क्लास में क्योंकि वो बहुत प्रिटी थी, उसके बाल बहुत सुंदर थे और उसके ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब बहुत अच्छा था, इसलिए एवरीवन यूज्ड टू टॉक टू हर एंड दे यूज्ड टू एडमायर हर. तो उन दोनों ने नोटिस इसलिए किया कि वो नहीं आई क्योंकि उन्होंने उसकी वजह से ये लोग लेट हो गए. नाउ व्हाई दे वर लेट एंड व्हाट हैड हैपेंड, लेट्स सी द नेक्स्ट. Now here they were waiting for Wanda and just to make fun of her. वो सोच रहे थे कि उसको आने दो, उसने हमें लेट किया है तो हम अब उसका मजाक बनाएंगे, उसके कुछ ना कुछ उसको बोलेंगे ऐसा जो उसको एज अ पनिशमेंट फॉर हर. Now what had happened? Wanda Paderewski, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say. अब Wanda Paderewski एक तो उनको नाम अजीब सा लग रहा था. उन्होंने क्या बोला, रूम नंबर 13 जहाँ उसकी सीट होती थी वहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका नाम इस तरह का होगा. तो उनको पहले तो उन्होंने उनका नाम का मजाक बनाया कि ऐसा कोई नाम होता है कि हमने तो ऐसा नाम कभी सुना ही नहीं. सबके नाम इजी थे, थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे नाम थे बॉयज़ के, तो उनको इजी लग रहा था. बट इसका ये क्या है, उन्होंने बोला ये पैड्रॉन्स्की क्या होता है, ये कौन सा सरनेम है और ये कैसा नाम है, कितना फ़नी. तो वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. अब उसकी कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे क्योंकि वो किसी को पसंद ही नहीं थी, तो उसके फ्रेंड्स नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन, अकेली आती थी, अकेली जाती थी और हमेशा वो एक फेडेड कलर, ब्लू कलर की ड्रेस हमेशा वो ही पहन के आती थी. शी वॉज नॉट हैविंग ड्रेसेज ऑल्सो, शी ऑलवेज यूज्ड टू वेयर फेडेड ब्लू कलर ड्रेस. वो बार बार सब लोग देखते थे और शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. तो बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात भी नहीं करती थी, ना उसको कोई वॉच करता है, वो आ रही है जा रही है, कोई उसको देख ही नहीं रहा. एंड शी वॉज देयर वॉचिंग द लिटिल. अब वो आती थी ना तो वहाँ पर हॉपस्कॉच गर्ल्स खेल रही है तो वो बेचारी कॉर्नर पे खड़ी होकर देखती थी क्योंकि उसको कोई इन्वॉल्व ही नहीं करता था, उसके साथ कोई खेलता ही नहीं था. वांडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्शियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. वांडा, शी'd say, giving one of her friends a nudge, tells us, how many dresses did you say
यू हैड हैंगिंग अप इन द क्लोसेट। अब उसने क्या मजाक बनाया पैगी ने, सबसे पहले तो उसको एकदम ऐसे बुलाती थी जैसे कि वो उसकी फ्रेंड ही है। देखो यहाँ सब ग्रुप में खड़े हैं ना, ये सारे पैगी, मैडी और ये सब हैं, और यहाँ ये वांडा अकेली खड़ी है। उसको मजाक बना के क्या पूछ रही है कि तुमने क्या बताया था कि तुम्हारे क्लोसेट में कितनी ड्रेसेस टंग रही है, तुम तो जब देखो जब ब्लू कलर की ये फेडेड ड्रेस पहन के आती हो। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। अब जैसे ही वांडा से उन्होंने पूछा तो वांडा ने झट से बोल दिया 100 ड्रेसेस। तो 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल। अब सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि 100 ड्रेसेस। वो जो हॉप स्कॉच खेल रहे थे वो भी सब रुक के एकदम देखने लग गए कि इसके पास 100 ड्रेसेस है, तब भी ये हमेशा भी ये फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस क्यों पहन के आती है। Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then the thin lips drooped towards in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all color. Velvet too. Yeah, velvet too. 100 dresses. अब उनने क्या बोला, हाँ पैगी ने मजाक में पूछा सारी सिल्क की होंगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ सिल्क की ड्रेसेस हैं और सब कलर में है और वेलवेट की ड्रेस भी है। तो सब लोग बोला वेलवेट की ड्रेस भी है, तो बोला कि हाँ, बोले कि मेरे पास सारी ड्रेसेस हैं और वो क्लोसेट में एक लाइन में टंगी हुई हैं। Then they'd let her go, and then before she'd gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. अब जैसे ही वो चली जाती ना, उसके पीछे से सब हंसते, क्योंकि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अगर इसके 100 ड्रेसेस हैं और वेलवेट की, सिल्क की, तो ये वाली गंदी सी ऐसी फेडेड फ्रॉक क्यों पहन के आती है। तो सारे उसका मजाक उड़ाते। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज अ ब्लू वन शी वोर एवरी डे। सो व्हाई डिड शी से दैट। अब सबको ताजुब होता था कि इसने ऐसे क्यों बोला, झूठ क्यों बोल रही है। हाउ मेनी शूज डू यू से यू हैड 60 पेयर्स। अब उन्हें नेक्स्ट पूछा कि तुम्हारे शूज़ कितने हैं, तो उसने क्या बोला 60 पेयर्स ऑफ शूज़। तब भी उन्होंने वो भी लाइंड अप बोला उन्हें। क्राइज ऑफ एग्जिग्रेशन पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप। अब उसने शूज़ के लिए भी क्या बोल दिया कि नहीं मेरे पास एक से शूज़ नहीं है, सब अलग अलग कलर के हैं और सारे लाइन से क्लोसेट में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। अब पैगी और मैडी जो थे ना, वो जो मेन थे, वो हमेशा ये उसके साथ खेलते थे कि तेरी ड्रेसेस कितनी हैं, तेरे शूज़ कितने हैं, बार बार उसको छेड़ते थे। और वही जो थे दो, वो हमेशा लास्ट में स्कूल से भी जाते थे ताकि वो निकले तब तक उसको चिढ़ाते रहे या उससे क्वेश्चंस पूछते रहे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। अब पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। अब पैगी जो थी एक्चुअली में इतनी क्रूअल नहीं थी, पर उसका एक नेचर था कि मजाक उड़ाना किस, लेकिन कोई छोटे बच्चों का दूसरों का मजाक उड़ाता था तो उनको डांटती भी थी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। पर वांडा के साथ गॉड नोज व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर दैट शी यूज्ड टू डू दैट। शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। किसी एनिमल को मिसट्रीट किया तब भी पैगी को अच्छा नहीं लगता था, मतलब बाय नेचर इतनी बुरी वो नहीं थी। If anybody had said to her, don't you think that it is cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100? अब कोई उसको पूछता था तुम वांडा के साथ तो इतने गंदी तरह बिहेव करती हो, क्यों इतनी क्रूअल क्यों हो, तो बोले क्रूअल, बोले वो मुझे झूठ क्यों बोल रही है, वो क्यों बोल रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो इसलिए वो उससे चिढ़ रही थी कि बार बार वो झूठ क्यों बोल रही है। अगर 100 ड्रेसेस हैं तो वो इसी फेडेड ब्लू में क्यों आ रही है, और तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अब उनने क्या बोला कि एक तो उसका नाम भी अजीब सा है, पता नहीं कैसी है, इसलिए मैं उसको बोलती रहती हूँ। और लेकिन उनने कभी उसको ऐसे रुलाया नहीं, रोई नहीं वो, बट उस बोलते थे। ऐसो मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेज एंड। अभी मैडी के लिए क्या था, मैडी तो पैगी जो बोलती थी वो बोलना पड़ता था उसको, बिकॉज मैडी भी एक पुअर गर्ल थी। वी विल रीड द नेक्स्ट। नाउ हाउ मैनी ड्रेसेस, मैडी को तो मैडी वॉज अ पुअर गर्ल, वो भी गरीब थी, लेकिन जो भी ड्रेसेस वो पहन के आती थी ना वो पैगी उसको देती थी, इसलिए जो भी पैगी बोलती थी मैडी को बोलना पड़ता था। उसकी जो भी वो गलत कर रही है सही कर रही है उसको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, क्योंकि वो फ्रेंड थी और वो उसको ड्रेसेस दे रही थी जो वो स्कूल पहन के आती थी, है ना, तो सारी उसकी दी हुई, तो इसलिए उसको हर जो भी वो बोल रही है पैगी, तो उसका क्वेश्चन क्या होता था, मैडी का क्या होता था कि हाँ हाँ, ये तो
तो आप सही, तुम ये पैगी सही बोल रही है. नाउ वांडा दोज क्वेश्चन इन द मॉकिंग पोलाइट वॉइस. मैडी फेल्ट एम्बेरसिंग. अब मैडी को ये अच्छा नहीं लगता था कि बार बार पैगी इसको ऐसे चिढ़ा रही है. उसको भी फील होती होगी, वो क्या सोचती थी कि कल ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती, तो मैं भी गरीब हूँ, मैं भी पुअर हूँ, और मुझे भी ये चिढ़ा सकती है ना, जैसे ये उसको चिढ़ा रही है वांडा को. तो वो ये सोच के कभी कभी उसको अच्छा भी नहीं लगता था कि ये बार बार वांडा को ऐसे क्यों बोल रही है. नाउ Wanda, not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invited the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in the next, she wasn't a poor Wanda. Of course, still she would not like them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda. अब बार बार उसको ऐसा लगता था कि ये Wanda को चिढ़ाना छोड़ दे तो अच्छा है, but वो नहीं छोड़ रही थी. Up today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had made fun of the Wanda. अब मैडी को क्या हुआ, एक बार लेट हो गए, पर उसको एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने वांडा का उस दिन मजाक नहीं बनाया. अब यहाँ पर क्या है, 8 times 8 इन्होंने बोला. शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. अब उन्होंने पैगी को एक नोट लिखा. अब पैगी को नोट में क्या लिखा, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had. अब उन्होंने क्या बोला, अब अपन ये नहीं पूछेंगे कि ड्रेस तेरे पास कितनी ड्रेसेस, अब ये पूछेंगे कि ये जो 100 ड्रेसेस तू लाई थी वो कहाँ से लाई थी. तो नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट शी सेड. ना मैडी उसको बार बार बोल रही थी कि अपन इसका मजाक बनाना ख़त्म कर दें, अच्छी बात नहीं है. तो मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. अब उसके बालों पे उसने हाथ फैलाया और उसको बोला कि अरे आप अपन अब इसका मजाक उड़ाना बंद कर दें. और उसने वो जो नोट था उनको उसको फाड़ के फेंक दिया और उसको बोला कि पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो जो भी पैगी बोलती थी वो सबसे सही है, वो मैडी को ही लगता था, पर वो ये ज़रूर बोलती थी कि वांडा का आप मजाक उड़ाना छोड़ दो. शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड. अब बोली कि तुम एक ऐसा सोच लो कि बोगिन हाइट्स में रहने वाली एक ऐसी आम लड़की है, तो अपन उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दें या ज़्यादा उससे कुछ बोले नहीं. शी कासी एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. अब वो कुछ बोलती भी नहीं है किसी को, कुछ भी नहीं करती. स्कूल यार्ड में वो बार बार बस यही बात बोलती है 100 ड्रेसेस है, तो ठीक है ना, बोलने दो ना उसको, क्यों बार बार तुम बोल रहे हो. शी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग. अब उसने वही बोला था, एक उसने ड्रेस बताई थी पेल ब्लू और ट्रिमिंग उसमें हो रही थी, कलर ट्रिमिंग. तो उसने क्या बोला, शी रिमेंबर्ड अदर वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन और एक रेड शैश था. तो उसने क्या बोला, ये भी 2 ड्रेसेस उसने बताई थी, तो ये तो ब्लू वाली तो ये पहन के आ रही है, तो ये वाली ड्रेसेस कहाँ पर है. यू लुक लाइक क्रिसमस ट्री इन दैट. बोले कि अगर ये ग्रीन वाली ड्रेस तुमने पहन ली तो उन्होंने क्या मजाक उड़ाया कि तुम तो क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी. नाउ थिंकिंग अबाउट वांडा, अब 100 ड्रेसेस के बारे में सोच के वो लोग क्या सोचते थे कि कैसी लगती होंगी ना, इसकी क्लोसेट में 100 ड्रेसेस लटकी हुई एकदम कलरफुल. तो उनको इमेजिन करते थे, वो चाहते थे कि इसके घर जाएं और वहाँ पर हम देखें कि इसकी ड्रेसेस कैसी लगती हैं, कैसे लटक रही है वहाँ पर. और मैडी बिगैन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग. अब क्या हुआ, इन्होंने क्या एक डिसाइड करा कि अपन एक ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं. अब उसने क्या सोचा कि पता नहीं कौन जीतेगा ड्राइंग कंपटीशन. मैडी ने सोचा, तो मैडी को तो ये पूरा यकीन था कि पैगी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी. फॉर गर्ल्स कॉन्टेस्ट दो तरह का बॉयज़ और के लिए ड्रेस था. देखो 2 कॉन्टेस्ट, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. तो गर्ल्स के लिए तो ड्रेस डिज़ाइनिंग का रखा था और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स के लिए बनाने के लिए रखा था. प्रॉब्ली पैगी वुड विन द गर्ल्स. अब उन्होंने क्या सोचा था, पैगी तो जीतेगी बिकॉज पैगी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट. बट यर नाउ द टीचर सी ओवर यर शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन ऑफ अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स and could almost tell who it was. और Maggie was sure Peggy would win. अब उनको पूरा यकीन था. Now the next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. No, naturally on the day they didn't wait for Wanda. अब Wanda के लिए उन्होंने wait नहीं करा and they reached the school. Now they were just waiting for the competition to start and they wanted to see that who draws and who will win, and they just avoided Wanda that day. Next.
नाउ द कॉम्पिटिशन हैड स्टार्टेड. नाउ ये लोग सोच रहे थे कि डू यू थिंक मिस मैसन क्या विनर को आज ही अनाउंस कर देंगी, क्या वो सोच रहे थे. ओ आई होप सो. द मिनट वी गेट इन सेड मैगी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. अब उन्होंने क्या बोला कि तुम ही जीतोगी. होप सो पैगी ने बोला. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स. दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम. अब उन्होंने जैसे ही वो रूम के अंदर आए क्लासरूम में, उनको पूरे रूम में ना ड्राइंग्स दिखी बहुत सारी. तो उन्होंने एकदम वो शॉक्ड हो गए कि ये ड्राइंग्स इतनी सारी कैसे. नाउ बहुत सुंदर डेजलिंग कलर्स, ब्रिलियंट रैविश डिजाइंस ड्रॉन, ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. दे वर देयर मस्ट बी हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. दे मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट. दे वर एवरी डे स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर्ड एडमायर्स. अब उन्होंने सोचा कि ये ड्रेस, ये कलर, ये इतना सारा पेंटिंग, इतनी सारी अच्छी ड्राइंग्स किसने करी है. सी दिस वे द ड्राइंग्स वो कैप्ट. ऑल दिस ड्रेसेस वो कैप, ये सारी ड्राइंग्स वहाँ पर लगाई हुई थी क्लास में. नाउ एक तरह का एग्जीबिशन था वो, है ना. एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स. अब मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस करे. जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर. नाउ गर्ल्स का टर्न था. गर्ल्स में ऑल्दो सच 1-2 sketches were submitted by most, one girl, and room 13 should be the proud of her. अब रूम 13 का नाम लेते ही उनको लगा कि अरे रूम 13 में से ऐसा कौन विनर आ गया. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रिंस्की इज द विनर. उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वांडा पेट्रिंस्की विनर है. नाउ द गर्ल्स वर रियली शॉक्ड एंड नाउ दे केम टू नो दैट 100 ड्रेसेस जो बार बार ये बोल रही थी, वो ये 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी जो उसी क्लोसेट में कलरफुल, ब्यूटीफुल कलर्स, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस में जो वहाँ लगी हुई थी, इन ड्रेसेस के बारे में वो बात कर रही थी. तो पैगी और मैडी सबसे ज़्यादा शॉक्ड हुए कि कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, कितने ब्यूटीफुल कलर्स के इससे ड्राइंग्स बनाई हुई हैं ड्रेसेस की. दिस इज़ द थिंग इज़ देयर इन दिस फर्स्ट टॉपिक, द 100 ड्रेसेस. थैंक यू.